ملتان کی تاجر برادری نے رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ مرکزی تنظیم تاجران حسین آگاہی کے صدر شیخ اکرم حکیم کا کہنا تھا کہ رات 8 بجے مارکیٹیں بند کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں۔ وسیم شہزاد کی رپورٹ دیکھیں گے۔ ملتان کی تاجر برادری نے رات 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ مرکزی تنظیم تاجران حسین آگاہی کے صدر شیخ اکرم حکیم کا کہنا تھا کہ رات 8 بجے مارکیٹس بند کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ اس سے تاجروں کا معاشی قتل ہوگا۔ حکومت کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، پہلے ہی ملک کے تاجر پیچھے پڑے ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ ہم لوگ جب کاروبار نہیں کر پائیں گے کہاں سے ٹیکس دیں گے، کہاں سے ہم نوکروں کو نکال دیں گے، سیل مین ورکروں کو یہاں سے نکال دیں گے، ہم کہاں چلیں گے؟ ہم لوگوں کو چلائے حکومت، ہم نے تو بڑی دعاؤں سے اس حکومت کو مانگا تھا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ نواز شریف کے دور میں ایک بڑا اچھا کاروبار کیا اس ملک میں۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں پرانے بلب کی جگہ LED لائٹس لانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ بجلی کی کھپت زیادہ ہے تو پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ سولر سسٹم لگائے، نہری نظام میں بہتری لا کر ہمسایہ ملک کی طرح بجلی کی پیداوار بڑھائے۔ حکومت سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے ملک کے اوپر وہ رحم کھائیں کچھ۔ دیکھیں، تاجر جو ہے وہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اگر ہم ان کو ریلیف نہیں دیں گے تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ویسے ہی آپ نے ملک کا دیوالیہ نکال ہی دیا۔ گورنمنٹ نے یہ فیصلے کیے ہیں، سجیشن دیا ہے، سراسر غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اگر 8 بجے آپ مارکیٹیں بند کر دیں گے تو ہمارے کاروباری صورتحال پہلے ہی اتنے متاثر ہیں مہنگائی کی وجہ سے، دکانیں بند ہو جائیں گی، مارکیٹ بند ہو جائیں گی، روزے معاش جو ہے ہمارا وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ حکومت 8 کی بجائے مارکیٹیں بند کرنے کا وقت 10 بجے مقرر کرے، اس سے بجلی بھی بچے گی اور روزگار بھی چلے گا۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب کے تاجروں نے رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ کہا کاروبار پہلے ہی مندی کا شکار ہے، رہی صحیح کسر حکومتی فیصلے سے پوری ہو جائے گی، حکومت اپنے اخراجات کم کرے۔ مزید دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ جنوبی پنجاب کے تاجروں نے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ کسی نے حکومتی فیصلے کو خوش آئند اور کسی نے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی۔ بھاولپور، شجاع آباد اور بہاول نگر کے تاجروں کا کہنا تھا کہ NEC کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ حکومت انرجی بچاؤ پروگرام کے لیے تاجر برادری کو اعتماد میں لے۔ پہلے ہی کاروبار مندی کا شکار ہیں، گاہک شام کے وقت باہر نکلتا ہے، جبکہ حکومت شام کے وقت کاروبار پر پابندی عائد کر رہی ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ رات 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ فی الفور واپس لیا جائے۔ کہ بہاولپور میں کیا کاروبار پورے ملک میں نہیں ہے، اگر 1-2 گھنٹے پہلے بند کرنے سے تو کوئی فرق تو پڑے گا نہیں، بجلی کے بل تو ویسے ہی اتنے آنے ہیں، کتنی انرجی بچائیں گے؟ حکومت نے بڑی دفعہ اس طرح کیا لیکن کبھی کوئی خاص بچت ہوئی نہیں۔ حکومت کے اس اقدام کو مسترد کرتے ہیں۔ کرونا وائرس سے لے کر ابھی تک تاجر کمیونٹی جو ہے نا نہیں سنبھل پائی، کیونکہ وار جو ہے نا مہنگائی کے وار ہوتے آئے، انویسٹمنٹ بڑھتی آئی، ہمیں یوٹیلیٹی بل جو ہے نا مشکل سے ادا کر رہے ہیں، ملازموں کی تنخواہیں بڑی مشکل سے پوری کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں حکومت ہماری تکلیفوں کو اگر دور نہیں کر سکتی تو کم از کم اس میں اضافہ بھی نہ کریں۔ کاروبار کے بہت برے حالات ہیں جی، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ گندم نہیں لے سکتے، آٹا نہیں خرید سکتے، اوپر سے یہ آرڈر کر دیا گورنمنٹ نے، اس میں تو لوگ بالکل بیچارے بے بس ہو جائیں گے۔ حکومت کے اس فیصلے سے کہ 8 بجے مارکیٹیں بند، تاجر انتہائی پریشان ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شدید گرمی کے موسم میں جو ہے لوگ شام کو نکلتے ہیں یا رات کو نکلتے ہیں، تو اتنی جلدی مارکیٹیں بند کرنے سے ظاہر ان کا کاروبار متاثر ہوگا۔ لودھراں، لیا اور کہروڑ پکا کے تاجروں نے بھی حکومت کی جانب سے رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ تاجر برادری کا کہنا تھا کہ حکومت ان کا معاشی قتل کر رہی ہے، حکومت مارکیٹیں بند کرنے کی بجائے اپنے اخراجات کم کرے، دکانیں بند کرنے کا وقت رات 10 بجے تک بڑھایا جائے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ گرمی میں دن کے وقت گاہک نہیں آتا، زیادہ تر رات کے وقت رش ہوتا ہے، اس طرح کے حکومتی فیصلے سے ہماری عید خراب ہو جائے گی۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والی بین الصوبائی شاہراہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند۔ قومی بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ راکھی گاج نیلی مٹی کے مقام بند ہوئی ہے۔ فورٹ منرو میں کوئٹہ روڈ بند ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، ہزاروں مسافر اور سیاح پھنس کر رہ گئے ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کی سپلائی بھی روڈ بند ہونے کے باعث معطل کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، اپڈیٹ کریں آپ کو، فورٹ منرو سے کوئٹہ روڈ بند ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ قومی بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ راکھی گاج نیلی مٹی کے مقام بند ہوئی ہے۔
महकमा फूड की जहानिया में कार्रवाई। 1000 बोरी गंदम की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 1000 बोरी गंदम ट्राली के जरिए दूसरे अजला स्मगल की जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर की जेर निगरानी और स्पेशल ब्रांच के हमरा कार्रवाई की गई है। जिला में स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आपको बता रहे हैं महकमा फूड की जहानिया में कार्रवाई। 1000 बोरी गंदम की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। बोरी गंदम ट्राली के जरिए दूसरे अजला स्मगल की जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर की जेर निगरानी और स्पेशल ब्रांच के हमरा कार्रवाई की गई है। मुल्तान पुलिस इन एक्शन। बदफेली के बाद बच्चे को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। दूसरी जानिब उबलते तेल में बच्चे के हाथ जलाने वाला मुलजिम भी पकड़ा गया। मजीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। ऑफिसर मुल्तान मंसूरुल हक राना ने पुलिस लाइन में दीगर अफसरान की हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि राजा राम में 10 साला बच्चे को बदफेली के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहबाज माली ने बच्चे को स्कूल से वापसी पर अगवा किया, खेतों में ले जाकर बदफेली की और गला काट कर कत्ल कर दिया। मैं आम आपको खिलाता हूँ, वो इस तरह करके उसको बच्चे को ले गया और जब वो आ गई वहाँ पे मेज़ की फसल आ गई तो वहाँ पे उसने बच्चे को काबू कर लिया। उसके बाद उससे सॉडमी की। जब सॉडमी होगी उसके बाद उसको अचानक ये एहसास हुआ कि ये तो बड़ा सीरियस ऑफेंस हो गया, ये जाके बताएगा। तो वो माली का काम करता था वो लड़का, वो भी यंग बॉय है, लाइक 20-22-24 साल उम्र है उसकी। तो उसके पास चाकू था जो वो तो उससे वो काटता था ये शाखें वगैरह। तो उससे फिर उसने बच्चे का गला काट दिया और वहाँ पे उसको फेंका तो वो उसकी ब्लीडिंग से जो है ना उसकी डेथ हो गई। एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद इमरान का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी के बायस मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। दूसरी तरफ 5 साला जुहेब पर तशद्दुद करने और खौलते तेल में हाथ डालने वाले मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घनौने जुर्म में मुलविस मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लालपुर वाला जैसे ही हमारे नोटिस में आया, एसएचओ को हमने सस्पेंड किया, क्लोज किया और साथ ही उस पर एफआईआर भी की, इंक्वायरी भी बिठा दी। इंक्वायरी का भी टाइम होता है 3 से 4 दिन, वो हमने पूरा करना होता है क्योंकि वो अब जो डिलिंक्वेंट पार्टी होती है, मुलजिम पार्टी होती है, उसका भी हक होता है अपना जवाब देने का। वो सुनने के बाद यहाँ पर किसी को नहीं हम स्पेयर कर रहे। बाकी रहा मखदूम रशीद का, वो एसएचओ अपनी सजा ले चुका हुआ है, शायद आपके नोटिस में है या नहीं, उसको रिवार्ड कर दिया गया। वो हमने फर्स्ट यूनिट में लेकर गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेबल है। और उसके बाद फिर हमने जो होटल मालिक था वो वहाँ से स्कॉट कर चुका था, लेकिन हमने अपने आईटी के जरिए और अपनी टीम के जरिए उसको जाके हमने उसको अरेस्ट किया। तो अरेस्ट करने के बाद फिर उसका हमने एफआईआर रजिस्टर्ड की, वो लॉकअप में है। सीपीओ मुल्तान ने मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी पर डीएसपी शुजाबाद गुलाम मुर्तजा सियाल, एसएचओ राजा राम अब्दुल सबूर, डीएसपी मखदूम रशीद मोहम्मद नईम और एसएचओ बस्ती मलूक हमाद खान समेत पूरी टीम को शाबाश दी। कैमरामैन हारून रमजान के साथ मोहम्मद इमरान नवाज, मुल्तान। बावलपुर में 26 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर्स के ओहदा पर बाकायदा तरक्की दे दी गई। 22 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर्स के बैज लगाकर तरक्की की मुबारकबाद दी गई है। आरपीओ रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर राय बाबर सईद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास ने बैजेस लगाए। तरक्की का बैज पाने वालों में सब इंस्पेक्टर आबिद हमीद, फैसल अमीन, रईसुल रहमान और शहजाद सरवर के नाम शामिल हैं। खुरम ज़का और फरहान हुसैन, गुलाम मुस्तफ़ा और गुलाम अब्बास समेत 22 सब इंस्पेक्टर्स को प्रमोशन बैज लगाए गए हैं। प्रमोशन की तकरीब रीजनल पुलिस ऑफिस में मुनक्किद की गई। रहमान खान में मरीजों की मुश्किलात कम ना हो सकी। लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया। मजीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ रहीम खान में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। छठे रोज भी शेख ज़ैद अस्पताल की ओपीडी के ताले ना खुल सके। दूर दराज के इलाकों से आए मरीज इलाज के लिए रुल गए। लवाहिकीन का कहना था कि वो मुसलसल अस्पताल आ रहे हैं लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं। निजी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं, वो किससे फरियाद करें। सर, मैं पाकिस्तान के तमाम अदारों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं अपने भाई को लेके आया हूँ। मैं रैशी ज़िला रमियर खां, तहसील खानपुर, सकना मौदा मीरपुर, शुगर मिल जट्टा पुटा का रैशी हूँ। सर, मुझे 10 दिन हो गए भेजते को, भागते को। आज करते हैं इलाज, कल करते हैं। जो असर असरूख वाले बंदे हैं उनका तो इलाज हो रहा है, बाहर से दवाई डॉक्टर से ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं। हम तो घूम रहे हैं, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, ऐसे घूम रहे हैं। आज के दिन बोला फिर आ जाएं, यहाँ ठहरे पड़े हैं होटल पर,
क्या करें, कहाँ जाएं। ॾाढी मेरे को तकलीफ़ है, मैं ॾाढी बीमार हाँ, मेरा कोई हल नहीं थींदा, मैं क्या करा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस एग्जीक्यूटिव कमेटी के वाइस चेयरमैन खुदा बख्श ने भी सुर्ख झंडी दिखा दी। कहा, डॉक्टरों पर तशद्दुद के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि हर दूसरे दिन जो है ना किसी महकमे हेल्थ के कभी डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, ठीक है, कभी जो है वो महकमे के डिस्पेंसर है उनके साथ अटेंडेंट बदतमीजी करते हैं, कभी नर्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जब तक तमाम तर महकमे हेल्थ के एक एक वर्कर को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक पूरे पंजाब की जो है ना ओपीडी तमाम तर जो है वो उनकी ओपीडी बंद रहेगी। जब तक ये गवर्नमेंट जो है ना डॉक्टर्स कमेटी को और तमाम तर महकमे हेल्थ के हर एक वर्कर को प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। परेशान हाल मरीजों ने आला हुकाम से डॉक्टरों की हड़ताल फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। आम खबर से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा खिलाड़ी कप्तान को छोड़ गया। नवाब बहावल खान अब्बासी ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। इनका मजीद क्या कहना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा खिलाड़ी कप्तान को छोड़ गया है। नवाब बहावल खान अब्बासी ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया है। बहावलपुर में पाकिस्तान के इस्तेकाम की खातिर मेरे खानदान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूं। नवाब बहावल खान अब्बासी का ऐसा कहना है। पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करता हूं। नवाब बहावल खान अब्बासी, मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों से मुशावरत के बाद करूंगा। रहीम खान से 4 साल बाद हज ऑपरेशन शुरू। शेख सैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट 156 हज कराम को लेकर जद्दा रवाना। दूसरी परवाज कल, जबकि आखिरी फ्लाइट 8 जून को उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट पर काबिल तारीफ इंतजाम किए गए। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखेंगे। रहीम यार खान से 4 साल बाद हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट 156 हजाज कराम को लेकर बरास्ता कराची जद्दा के लिए रवाना हो गई। दूसरी परवाज 7 और आखिरी फ्लाइट 8 जून को उड़ान भरेगी। मजमूई तौर पर 3 परवाजों के जरिए 460 हजाज कराम हजाज मुकद्दस के लिए रवाना होंगे। इससे कबल 6 रोजा हाजी कैंप पीसी मार्गी में कायम किया गया। हजाज कराम को गर्दन तोड़ बुखार, पोलियो, फ्लू और कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई और सफरी दस्तावेजात और सऊदी करेंसी दी गई। फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हम हज के लिए जा रहे हैं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है। और कुछ ही देर बाद हमारी फ़्लाइट है, तकरीबन 8:20 पे। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है, हर चीज़ बेहतर है माशाल्लाह। इसमें सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें बुलाया है और बाकी कोशिश भी होगी, ख्वाहिश भी होगी कि अल्लाह ताला इसको कबूल करे और हमें इस तक तौफीक दे कि हम दुनिया को भूल के ना अल्लाह की तरफ रुजू करें। An excellent place to visit. You know, everything was well arranged. There was a token in the start and that was sitting place very well. The marquee has arranged the refreshment and the helping hands. So we have really appreciated the work conducted by the Ministry of Hajj. हजाज मुकद्दस रवानगी के वक्त हजाज कराम की खुशी दीदनी थी। अहले खाना और प्यारों ने फूलों के हार पहनाकर दुआओं के साथ रुखसत किया। इनके लिए दुआएं खुसूसी, अल्लाह पाक इनको खैर खैरियत से खड़े, अपने मानोफियत से खड़े। अल्लाह पाक इन्हों का जाना आना कबूल फरमाए। अल्लाह पाक जो भेज रहे हैं, अल्लाह पाक जो कह रहे हैं दुआओं वास्ते, अल्लाह उनकी भी दुआएं कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह के करम से अल्लाह पाक ने हमें अपने घर बुलाया है। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम हज के लिए सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं वाले साहब के साथ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा सफ़र भी आसान करे, हमारी इबादत भी कबूल करे, हम तमाम मुसलमानों की खैरियत करे और हमारे पाकिस्तान को कायम दायम रखे जी। इस मौके पर हजाज कराम ने मिनिस्ट्री ऑफ हज के इंतजामात को खूब सराहा। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे आंधी और तूफान बागबानों के लिए कड़ा इम्तिहान। मूसलाधार बारिशों से कई शहरों में फसलें और बागात उजड़ गए। मियां चन्नू में भी आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। साल भर की मेहनत और फल ज़ाय होने पर बागबान शदीद परेशानी का शिकार हैं। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं आसिफ खान न्याजी की ये रिपोर्ट। आंधी और बारिश की वजह से आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। जनूबी पंजाब को आम की पैदावार में खास अहमियत हासिल है, मगर मौसमी तगय्युरात, बारिश, आंधी, तूफान और जालाबारी के बाइस आम गिरने से पैदावार बुरी तरह मुतासर हुई है। फल गिरने और मौसमी खराबी के बाइस बागबान परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, मुल्क में महंगाई ने पहले ही कमर तोड़कर रख दी, फिर महंगाई की वजह से हमने इस बाग को खरीदा जो तकरीबन पहले की निस्बत हमें 3 लाख ज़्यादा महंगा खरीदना पड़ा। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला की तरफ से क्या कहना कि आंधियाँ, तूफ़ान, बारिशें हुई, माल काफ़ी सारा गिर गया। हमारे पास इस वक्त मौजूद थी तकरीबन
3-4 किस्म की हमारे पास वैरायटियाँ हैं इस बाग में, जिनमें से चौंसा, दशहरी और अमरडिडोल और देसी भी है। मगर बारिशों की वजह से जब ये माल काफ़ी ख़राब हो गया, गिर गया, ये वो वक़्त था कि जब ये पीक पर, अरूज पर माल होना था। कुदरती आफात, तूफानी बारिश, आंधी और यालाबारी ने इस बार आम की पैदावार को शदीद मुतासिर किया, जिसके बायस बागबानों को माली खसारे का सामना है। ਹਨੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਣਗੀਆਂ या नहीं आणगियां। अगर हुकूमत बागबानों की सरपरस्ती करे तो इससे कसीर तादाद में ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। परेशान हाल बागबान हजरात ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है ताकि उनके नुकसान का अजाला हो सके। कैमरामैन तलहा राजपूत के साथ आसिफ खान न्याजी, रोही, मियां चन्नू। बारिश के बाद शहर ओलिया ने मरी को पीछे छोड़ दिया। मुल्तान में दर्जा हरारत 22 जबकि मरी में 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम ठंडा होने के बाद शहरी घरों से बाहर निकल आए। मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, मुल्तान की बात करते चलें तो मुल्तान ने इस वक्त मरी को जो है वो पीछे छोड़ दिया है और शहर मुल्तान के जो बासी हैं वो इस वक्त मरी के मौसम का मज़ा ले रहे हैं। अगर मरी की बात करते चलें तो मरी में मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन मुल्तान में दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है। इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, क्योंकि जून जुलाई में ऐसा मौसम कम देखने को मैसर होता है, लेकिन जून की जहाँ गर्मी की बात होती है मुल्तान में, वहीं पर शहरी जो है वो इस सर्द मौसम में जो है वो चाय का मज़ा ले रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ दोस्तों की गैदरिंग जो है वो मौजूद है। आप बताइएगा क्या कहेंगे आप इस हवाले से, और कैसे लग रहा है आज मुल्तान का जो दर्जा हरारत है बारिश के बाद जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हुआ है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, जैसे आपने कहा मरी के टेम्परेचर को हमने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और तकरीबन 10-15 दिनों से मुल्तान का वेदर बहुत अच्छा जा रहा है। हम तो मज़े दोस्तों के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम। दिन भर की जो थकान होती है उसको दूर करके दोस्तों के साथ एंजॉय करना लाइफ में कितना ज़रूरी है, और आप एक किस्म का कैथारसिस जो है वही हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा सबको करना चाहिए। सारा दिन की थकान के बाद दोस्तों के पास 1-2 घंटे ज़रूर बैठना चाहिए। सारे दिन की थकान के बाद दोस्तों के पास जो वक्त है वो ज़रूर जो है वो गुजारना चाहिए, और इसी वक्त को गुजारने के लिए शहरी जो है वो इस वक्त मुल्तान में जो टी स्टॉल है वहाँ पर मौजूद हैं, जो इस खुशगवार मौसम में चाय का जो मज़ा है वो ले रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ और जो है वो शहरी भी मौजूद होंगे। ये बताइए, दिन भर जो है वो ऑफिस का काम और उसके बाद जिस तरह मौसम जो है वो एकदम से मौसम ने अंगड़ाई ली और अब फील जो है वो मरी जाने की भी ज़रूरत नहीं रही, क्या करें? अभी तो मुल्तान ही मरी इस टाइम बना हुआ है, और पूरे दिन जिस तरह आप बता रहे हैं, पूरे दिन थकन के बाद जो है इस टाइम एक इस खुशगवार मौसम में बैठ के बाहर ओपन एयर में चाय पीना दोस्तों के साथ पूरे दिन की थकन को दूर कर देता है। और ये मौसम जिस तरह मुल्तान का हुआ है, कभी लाइफ में जून में इस तरह से मौसम नहीं हुआ जिस तरह से आज ज़ालाबारी भी हुई और जो है वो बारिश भी बहुत हुई, तो मौसम बड़ा अच्छा खुशगवार सा हो गया। बिल्कुल, ज़ालाबारी और बारिश के बाद मौसम जो है वो खुशगवार हुआ, और इस खुशगवार मौसम को लुत्फ़ उठाने के लिए शहरी जो है वो मुल्तान के जो टी स्टॉल है वहाँ पर मौजूद है, और उनके इस हवाले से ये भी कहना है कि मुल्तान में ऐसे मौसम में इस तरह का जो वक्त है वो दोस्तों के साथ ना गुजारा जाए, तो ये जो इस मौसम की अगर बात करें मज़ा, तो वो दोबाला नहीं होता। इसीलिए जो मुल्तान के बासी हैं वो जून के महीने में ठंडे मौसम का मज़ा ले रहे हैं। वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका।